Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Sabina, your mastermind faculty, and in this session I will be going to tell you that how you can utilize your the last 2 months for your NORCET 9.2 entrance examination, right? So the last 60 days, the NORCET preparation strategy and what source you have to refer in this 2 month ke duration mein, and what are the main key area which you have to focus in these 60 days duration, right? So as you all know, I'm sure जो भी नॉर्सेट 9.0 को टारगेट कर रहे हैं अभी इस 2 महीने में the main focus area should be only two important pillar, which is your practice and revision. By now आपके सारे major subject minor subjects complete हो गए होंगे, and by chance अगर आपका कोई भी major या minor pending है, then try your best to give maximum time to cover theory of major subject first, right? आपने major subject की theory को complete कर लेना है पहले. By chance अगर आपका कम्युनिटी यहाँ पे पेंडिंग है, राइट? अगर हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पेंडिंग है, देन यू विल ट्राई, दैट्स फाइन, क्योंकि कम्युनिटी इज अ सब्जेक्ट जितना आप लेट पढ़ोगे उतना ज्यादा वो रिटेन रहेगा. सो कम्युनिटी अगर आप अगस्त में भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, राइट? बट मेक श्योर दैट ऑल द मेजर सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, सर्जरी, नर्सिंग फाउंडेशन, योर फार्माकोलॉजी, आपका ऑप्स एंड गाइनी, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, ऑल दीज सब्जेक्ट शुड बी कंप्लीटेड. नहीं हुए हैं, देन टेक अ टारगेट, अपना टारगेट रखो कि बाय 15th of July, I am going to cover all those major subjects. Minor subject they will be on ongoing, अगर आप रख सकते हो that would be fine. Minor subject को जुलाई और अगस्त में थोड़ा थोड़ा टाइम देके आप कवर कर लोगे, बट फर्स्ट कवर योर मेजर सब्जेक्ट, राइट? सो अपकमिंग ये हमारे जो 2 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें हमारा मेजर फोकस होगा प्रैक्टिस रिविजन. तो आपने याद रखना है दैट विल बी बेसिकली जो आपका प्रैक्टिस एंड रिविजन का पार्ट है उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे. बाय चांस अगर कोई थ्योरी हमारी पेंडिंग है, सो द रेशियो विल बी 60-40. 60% we are going to focus on practice and revision part, and 40% we are going to cover and give time to our theory, especially theory of major subject. I'm not talking about minor subject. अगर minor subject है तब यहाँ पे हम 80-20 का रेशियो रखेंगे. 80% हम practice and revision को टाइम देंगे, 20% we are going to cover the minor subject theory, right? Now here practice and revision should go together, अलग अलग नहीं जाएंगे. This is one of the most common problem which the student face when they are preparing in the last days for their examination. is ये पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि we keep on revising our notes. जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन मैंने अभी तक अपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बैच के साथ, स्टूडेंट के साथ रिसीव किया है, वो ये है कि मैम मैं अपने नोट्स को रिवाइज करती हूँ बट स्टिल आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन इम्प्रूविंग माई स्कोर्स. मैं जब भी अपने सारे नोट्स पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद रिवाइज करके गो थ्रू करके फिर जब मैं ग्रैंड टेस्ट देने बैठती हूँ, बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू इम्प्रूव माई स्कोर, और आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, एंड मेनी टाइम आई गेट कंफ्यूज्ड. So in this video, I will be telling you what is the right strategy. Might be possible कि आप वो strategy जो है revision की वो use ही ना कर रहे हो. You are आप एक traditional method से revision करते आ रहे हो जो कि अब इस time पे useful नहीं है. So going forward, we will be covering the revision strategy and the practice, what to practice and from where to practice, what to revise and from where to revise. Okay. So सबसे पहले let us start with the practice. Always remember, practice is the key to crack NORCET in one go with a very good rank, even all India rank 1. Yes, if I am telling you this, that is absolutely correct, that you can clear easily NORCET in one go with all India rank 1 with practice, with very good practice, right? Now in this practice segment, अब practice में करना क्या है? देखो, हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी दैट टाइम जब हमारे 6 मंथ का टाइम था, 9 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे हो नॉर्सेट के लिए, दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू ऑल. और उस टाइम पे हमारा प्रैक्टिस का ना एक स्ट्रैटेजी अलग होता है, बट नाउ प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज अब इस टाइम पे वी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस मोर द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और द टॉपिक वाइज टेस्ट, ऑल्दो ये हम करेंगे, but we will give our more time, we will give our more focus in practicing the grand test.
और द मॉक टेस्ट, राइट? आपको अपना सबसे ज्यादा टाइम देना है ग्रैंड टेस्ट और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में, बिकॉज जितना ज्यादा आप एक मिक्स्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मतलब ग्रैंड टेस्ट, सो ग्रैंड टेस्ट में क्या होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे इन अ वेरी वेल बैलेंस्ड मैनर, जिससे कि यू विल गेट टू नो कि हमें पता है कि हमारा जो है नॉर्सेट प्रीलिम्स में वी आर गोइंग टू हैव योर एप्टीट्यूड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, मेड सर्च हो सकता है, ओबीजीवाई मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट का अमलगेमेशन होगा, एक जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रीलिम स्टेज 1 होगा वो आपको प्रैक्टिस करना है अभी, सो दैट योर ब्रेन शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, राइट? ताकि हमारा ब्रेन उसी तरीके से सोचे, उसी तरीके से फंक्शन करे जब हम इस तरीके के प्रैक्टिस जब टेस्ट देंगे और फाइनली जब हम प्रीलिम स्टेज 1 को अटेम्प्ट करेंगे। सो प्रीलिम स्टेज 1 आपका सबसे पहला टारगेट है, स्टार्ट। आपका सबसे पहला टारगेट है प्रीलिम स्टेज 1, उसे अटेम्प्ट करने से पहले, स्टेज 1 को अपीयर करने से पहले आपको मैक्सिमम ग्रैंड टेस्ट देने हैं स्टेज 1 के पैटर्न में, सो दैट योर ब्रेन विल हैव इनफ एक्सरसाइज कि जब आप वो स्टेज 1 दो तो आपको ब्रेन को कैसे एक्ट करना है, कैसे आपने किस डायरेक्शन में सोचना है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ग्रैंड टेस्ट हम देंगे यहाँ पे इस पूरे 2 मंथ की ड्यूरेशन में। इसके बाद हमें जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक होते हैं ना हर सब्जेक्ट के, यू हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक, हाई लीडिंग टॉपिक, राइट? ये आपको एनएनएल पे मिल जाएंगे, आपकी बुकलेट में मिल जाएंगे, एनएनएल के एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के जो भी फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी नो इन नर्सिंग फाउंडेशन सीपीआर इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। अब जब आपको पता है कि नर्सिंग फाउंडेशन में सीपीआर इज गोइंग टू आस्क दिस टाइम आल्सो, सो आपने ग्रैंड टेस्ट के अलावा और क्या टेस्ट पे फोकस करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक के टेस्ट पे फोकस करना है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन ग्रैंड टेस्ट, सो सेकंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टेस्ट, एंड थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिर्फ ये 3 चीजें हैं अंडर द प्रैक्टिस मॉड्यूल जो आपको फोकस करनी है इन दिस 60 डेज ड्यूरेशन में। योर ग्रैंड टेस्ट, मैक्सिमम ग्रैंड टेस्ट को अटेम्प्ट करने के कुछ रूल होंगे विच आई विल बी डिस्कसिंग आफ्टर दिस। स्टार्ट। ग्रैंड टेस्ट को अटेम्प्ट करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, एंड व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर अटेम्प्टिंग द ग्रैंड टेस्ट, दैट आई विल बी डिस्कसिंग आफ्टर दिस, राइट? एंड ग्रैंड टेस्ट के साथ आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नॉर्सेट। सो नॉर्सेट में अभी हमारे पास 2020 से पेपर शुरू हुआ था, एंड वी हैव टिल 2020 8.0 तक के एग्जाम हो चुके हैं, वो सारे आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं। सो एवरी संडे यू कैन हैव अ शेड्यूल कि हर संडे आप एक नॉर्सेट का रिकॉल जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके रैशनल को डिटेल में असेस कर रहे हो, एंड डोंट स्टार्ट विद 2020, स्टार्ट विद 8.0 जो सबसे लेटेस्ट पेपर होता है ना रिकॉल का, वहां से आप स्टार्ट करोगे इन अ डिसेंडिंग मैनर, राइट? डिसेंडिंग में, असेंडिंग में नहीं करना। स्टार्ट विद 8.0 एंड देन 8.0 के बाद 7.0, 6.0, 5.0, 4.0 अप टू 4.0 भी अगर आपने कर लिया इट इज मोर देन इनफ। बट इफ यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है तो आप 2020 तक के नॉर्सेट 1 तक के अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अप टू 4.0 अगर आप कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? सो वी हैव ग्रैंड टेस्ट करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टेस्ट ऑफ frequently asked topic of all subjects including major and minor, and third is your previous year question. Now let's talk about the grand test, because grand tests are going to play a very important role in last 60 days of preparation. क्यों? Because like I said कि हमारे ब्रेन को हमें अब एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर प्रीलिम्स में हमें क्लियर करना है, 1 गो में क्वालिफाई करना है, तो हमें ये बताना है ब्रेन को कि किस स्टेप पे क्या हमें एक्शन लेना है, कितना क्वेश्चन करना है, कितने में करना है, राइट? द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस whenever you are going to attempt any grand test, let's take an example, you have your schedule है आपका grand test tomorrow. Before attempting a grand test, make sure that you have a proper एक जो एरिया है जहाँ पे आपको ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करना है, यू शुड हैव अ वेरी क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ये अटेम्प्ट करो। दूसरा, अटेम्प्ट एनी ग्रैंड टेस्ट इन वन गो, डू नॉट अटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट इन बिट्स और पीसेस। नहीं, एक आपका ये जो ग्रैंड टेस्ट होगा प्रीलिम्स पैटर्न का 90 मिनट का होगा। 90 मिनट ड्यूरेशन विल बी देयर फॉर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, 5 सेट होंगे, हर एक सेट में 20 क्वेश्चन, 18 मिनट का ड्यूरेशन।
सो मेक श्योर, सबसे पहला रूल यही है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द ग्रैंड टेस्ट इन वन गो. तभी आप वो हैबिट बिल्ड कर पाओगे टू सिट टू सिट इन अ प्लेस फॉर दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, 90 मिनट तक स्क्रीन के सामने बैठने की. सेकेंड इज ट्राई योर बेस्ट टू अटेम्प्ट दीज ग्रैंड टेस्ट इन अ CBT फॉर्म. आप कहीं जो कंप्यूटर बेस्ड लैब होती है, जैसे NNL Academy, they do have a computer based lab. So if you are living in an area which is near to Delhi NCR, then regular नहीं आ सकते, then once in a month or once in a week you can schedule your visit at the NNL Academy CBT lab, जहाँ पे आप वो experience कर सको. Specially recommended to all the freshers, those who are going to appear this NORCET 9.0 for the first time. So उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप CBT पे जरूर टेस्ट दें before you will go and sit for your final NORCET 9.2 exam. Right? Why it is important giving test in the CBT? Because when you're actually experiencing the same situation, उस टाइम पे you can feel, you can sense कि क्या situation, कैसे एंजाइटी होती है और वो एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को रीड किया जाता है, जो कि कई बार आपके एप्लीकेशन पे, मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है. राइट? सो आई वुड डेफिनेटली स्ट्रांगली रिकमेंड दैट वंस इन अ मंथ और वंस इन अ वीक, इफ यू आर residing here near to this area and an academy, then definitely come and attempt this test of grand test at the CBT lab. Right? तो आपको एक तो वन गो में देना है, तो आपने अपना शेड्यूल ऐसे बनाना है. इफ आई एम वर्किंग तो आई मेक श्योर कि मैं इवनिंग में मेरा टाइम 90 मिनट का मेरे पास टाइम हो और मैं वो बैठ के एक साथ पेपर को अटेम्प्ट करूं. दूसरा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, बिफोर अटेम्प्टिंग एनी GT, कोई भी GT को अटेम्प्ट करने से पहले आपको जो आपके, अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया है, राइट, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एंटायर सिलेबस, देन यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स. स्पेशली क्या रिवाइज करना है? अब रिविजन में तो n नंबर ऑफ रिविजन है, सारे सब्जेक्ट है, बट आई हैव टू रिवाइज. ऑलवेज फोकस ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक. राइट? अब इस टाइम पे हमें सारी रिविजन करना, इट्स हर बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है. सो जैसे जैसे हम एग्जाम के पास आते जाते हैं, उस टाइम पे हम लोग सेग्रीगेट करते जाते हैं. जैसे ट्राइज में सॉर्ट करते हैं ना, वैसे ही हम सेग्रीगेट करते हैं कि नाउ आई नो द कंसेप्ट, but what I have to keep on revising is this frequently asked topic. I have to keep on revising all the frequently asked topic and along with this frequently asked topic, आप अपनी error notebook को revise करोगे. And by now I'm sure you all know what is error notebook. Error notebook is जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बुक से MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, you are practicing from a test series, कोई भी आपकी जो सोर्स हो, जिस भी जगह से आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, the MCQs in which you are facing difficulty to identify the correct answer, or the MCQ which are very new to you, right? Those MCQ you have to write down in a separate notebook in one-liner form with the correct answer. And you know why? What was your thinking? what you were thinking जब आप वो उसको आपने incorrect answer क्यों मार्क किया? तो ये कुछ पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ताकि आप जब ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो हर बार आपने ये दो चीजों को रिवाइज करना है. राइट? देन अटेम्प्ट द ग्रैंड टेस्ट. अगला पॉइंट ये है कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द ग्रैंड टेस्ट, डोंट set the target of attempting all 100 MCQs. I'm talking about stage 1 prelims का जो grand test होगा, right? जो stage 1 prelims के pattern पे जो grand test होगा, जिसमें you will be getting 100 MCQs. So आपका टारगेट पूरे 100 MCQ अटेम्प्ट करना नहीं है. You need to understand the game of negative marking. Unless you will not understand how you will able to minimize the negative marking. Right? And we should not wait कि मैं प्रीलिम एग्जाम में बैठूंगी 9.0 के तभी मैं ये जो है प्रैक्टिस करूंगी कि नेगेटिव मार्किंग कैसे मिनिमाइज कर सके. इट इज एन आर्ट एंड दैट यू कैन लर्न विद द टाइम व्हाइल प्रैक्टिसिंग राइट नाउ द ग्रैंड टेस्ट. राइट? सो जो भी ग्रैंड टेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम बिगिनिंग, जो भी ग्रैंड टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, डोंट फोकस ऑन अटेम्प्टिंग ऑल द 100 क्वेश्चन. नो, आपने क्या करना है, सेम एक्सरसाइज हम करेंगे जो हम प्रीलिम्स को समझ के करेंगे, दैट दिस इज माय फाइनल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ स्टेज 1. सो जो भी सेट में जितने भी, सबसे पहला रूल, जो ग्रैंड टेस्ट 1 दोगे, जितने क्वेश्चन यू आर यू फील लाइक आई एम कॉन्फिडेंट आंसर इज 100% यही करेक्ट होगा. Let's take an example. The question is CPR. What is the ratio of chest compression
and chest compression and ventilation in adult when there is single rescuer. अब यू नो कॉन्फिडेंटली कि आपका आंसर 30:2 होगा, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो आपने 30:2 करेक्ट कर लिया. अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है. Always attempt first the question in which you have fully confidence कि ये ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 100 में से जब मैं पहला ग्रैंड टेस्ट दे रही थी तो 100 में से देयर वर ओनली 50 क्वेश्चन इन विच आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल माय एंटायर सिलेबस, 50 क्वेश्चन में मैं फुली श्योर थी कि ये करेक्ट आंसर है. अब व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 50? जो रिमेनिंग 50 होंगे जरूरी नहीं है कि वो पूरे 50 स्किप करने हैं. नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेफ जोन, कि अगर मेरा नेगेटिव हुआ भी तब भी मेरे जो है मेरी जो स्कोरिंग मार्क्स होंगे वो मैं क्लियरिंग जोन में होंगे, मतलब मेरे ग्रीन जोन में होंगे. तो ये जो आपके 50 बचे ना, अब इसमें आता है स्टेप 2. स्टेप 2 में यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस क्वेश्चन. हर एक सेट में वो क्वेश्चन को देखो जिसमें आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो एंड 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है. फिर वो 2 ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा टाइम दो एंड लुक ऑलवेज, ट्रेन योर ब्रेन इन सच अ वे that you are not focusing on the correct answer. जब आप हर बार अपने ब्रेन को इस काम में इस पे स्ट्रेस करोगे कि what is the correct answer, brain is never going to help you. But reverse कर दो. Now you have to tell the brain that what could not be the correct answer. Then your brain will focus more on identifying the incorrect answer. राइट. सो दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड जो आपको यूज करना है. पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर once you'll get 2 remaining option left with you, then try to figure out कि कौन सा और incorrect हो सकता है, राइट. when you have your gut feeling says 80% मुझे लग रहा है यही होगा, then try with your gut feeling. अभी ट्राई कर रहे हैं, पहला जीटी हम ट्रायल पे देख रहे हैं, उसमें भी I will not going to attempt all the 100 question. Only the question which I am fully confident, like 50 question I am fully confident, then I will take a risk of 15 to 20 question मैंने risk पे लिए, 30 question मैंने skip कर दिए. Now what will happen after this? जब मैं ये टेस्ट को सबमिट करूंगी, I will check my score. Not only I am going to check my score, but I have to write down. I am going to write down in a diary. और वो एक सेपरेट डायरी होगी, अलग पीछे आप लिख सकते हो, जिसमें आपने ट्रैक रखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड टेस्ट 1 में यू हैव स्कोर, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपका जो है आपके प्रीलिम्स जो आपने ग्रैंड टेस्ट दिया उसमें करेक्ट आंसर कितने थे, रॉन्ग आंसर कितने थे, आपने स्किप कितना किया, आपका टोटल स्कोर क्या है. इससे होगा क्या, यू विल कंपेयर. एंड जब आप नेक्स्ट जीटी देखोगे, बिफोर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट सेकेंड जीटी, यू हैव टू लुक एट योर स्कोर so that you will have this image in your mind कि मैंने लास्ट टाइम मेरे जो है 60 करेक्ट गए थे, 50 में से 40 करेक्ट गए थे, मेरे जो है 15 नेगेटिव मार्किंग आ गए, 5 मार्क्स मेरे कम हो गए था, मेरा ये स्कोर था, राइट. यू हैव टू ट्राई दिस राइट नाउ, अदरवाइज प्रीलिम्स में सब ब्लंडर हो जाएगा, प्रीलिम्स में कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. सो प्रीलिम्स से पहले जो भी ग्रैंड टेस्ट आप दोगे, ट्राई दिस मेथड. डोंट अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन. इवन टॉपर्स भी 100 अटेम्प्ट करके नहीं आते. सो हम क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी, है ना, ये प्रैक्टिस हमारे लिए, ताकि हम प्रीलिम्स को उसी तरीके से अटेम्प्ट करें. सो व्हाई नॉट फ्रॉम नाउ focus your brain first on attempting all those questions in which you are confident. Second is take a risk of पहले आपने 15 का लिया, फिर इसको बढ़ा के 20 का लोगे. हमेशा 20 क्वेश्चन आपके जो है सेफर जोन में रहते हैं. अगर इफ यू आर फुली कॉन्फिडेंट कि वो जो 50 किया है उसमें कोई गलत नहीं होगा, राइट. सो 20 क्वेश्चन का रिस्क लेके आपको देखना है शुरू के जो आपके जीटी होंगे, एंड देन कंपेयर द स्कोर एंड राइट डाउन योर स्कोर इन a notebook, in a separate notebook, right. अब once you have submitted the GT, you have your score. Now what will be the next step? आगे क्या करना है? आगे का स्टेप ये है कि you have to analyze the GT paper जो भी आपने दिया है, which is very important because this analysis will help you in improving your score. Now how you are going to analyze this paper? Point number 1, सबसे पहले आप पूरे पेपर में ये फाइंड आउट करो कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग और जो क्वेश्चन स्किप करे हैं, इन दोनों में से वो जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन का बेस क्या था. क्या वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड थे. फैक्ट बेस्ड मतलब जो वैल्यू होती है, जैसे लिथियम का टॉक्सिसिटी लेवल क्या है आप उस टाइम पे भूल गए और ये नेगेटिव मार्किंग में चला गया, आपने लगाना था कुछ और, आपने कुछ और लगा दिया, राइट.
तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, आपको ये पता होगा कि आपके फैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, या आपको याद नहीं रह रहे, यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज प्रॉपरली। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे फैक्ट वाले क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से मेरे 8 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे जिनको मैंने गलत इनकरेक्ट किया है, एंड उसकी वजह से मेरे नेगेटिव मार्किंग आए। जब मुझे पता चल गया कि मेरे फैक्ट वाले क्वेश्चन में गड़बड़ है, मेरे फैक्ट वाले क्वेश्चन में गैप होल है, तो नाउ बिफोर नेक्स्ट जीटी आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन सच टाइप ऑफ कंटेंट, राइट। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं नोट्स को मैं अच्छे से रट लूंगी, क्योंकि जब मेरा गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है मेरे पास। सेकंड इज, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि कंसेप्ट बेस्ड था जो मुझसे गलत हो गया? तो अगर कोई आपने जो देखा कि ग्रैंड टेस्ट 1 में, राइट, OBGY के आपने 12 क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क करे, एंड 12 क्वेश्चन के साथ आपने जो है मान लीजिए 8 क्वेश्चन स्किप कर दिए। दैट मीन्स अब ये जो आपने क्वेश्चन इनकरेक्ट और स्किप करे, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द टॉपिक, कि वो क्वेश्चन क्या था, क्या वो PPH से पूछा था, क्या वो लेबर के ऊपर पूछा था। तो ये क्वेश्चन आपकी जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बिकॉज यू हैव टाइम, अब आपने यही टॉपिक के दोबारा अपने नोट्स पढ़े, अगर नोट से समझ नहीं आ रहा कंसेप्ट तो मेन वीडियोस पे जाके देख लो, बट यू हैव टू वॉच द वीडियो इन 2x स्पीड, राइट, ताकि जल्दी कवर हो सके। सो ग्रैंड टेस्ट का रूल यही है, आपने आइडेंटिफाई करना है दैट फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स, नंबर 1। देन वंस यू आइडेंटिफाई, यू हैव टू वर्क ऑन दोज डेटा, क्या वो फैक्चुअल है, क्या वो कंसेप्ट बेस्ड है, उसको अपना स्ट्रॉन्ग करो। एंड देन बिफोर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट जीटी, जो भी यहाँ पे मिस्टेक करी थी GT1 में, जो आपने अपनी एरर नोटबुक में लिखी होगी, उसको रिवाइज करो, एंड सेम ड्रिल आई एम गोइंग टू परफॉर्म बिफोर अटेम्प्टिंग सेकंड जीटी। एंड सेकंड जीटी के बाद भी मैंने अपने स्कोर को लिखना है टू इवैल्यूएट कि क्या मेरी प्रोग्रेस ऊपर हुई या नीचे हुई। डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी, लेकिन अगर आप ये सारा एफर्ट लगाओगे, सारा एफर्ट, सब कुछ, सारे सोल्यूशन जो है 14 सितंबर के लिए नहीं रख रहे हैं, अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके 14 सितंबर को हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे, राइट, बिकॉज वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन टू प्रैक्टिस इन सच अ वे कि विल एबल टू फिगर आउट कि हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, राइट। So this is about your practice part. You are going to practice in these 60 days the grand test, frequently asked topic of all the subject, major and minor, and your previous year question. ये 3 domain पे आपको focus करना है. Now if I talk about revision part, revision में most important again same frequently asked topic. अब frequently asked topic की ना revision कैसे करनी है? Because you are practicing MCQ, so this is also a form of revision. रिविजन को एक सेपरेट मॉड्यूल नहीं रखना है। नाउ हियर लेट मी टेल यू ऑल the wrong method of revision which we all are following and due to which we are not able to improve our score is the passive revision. Passive revision is something कि आपने वीडियो देखा and while watching the video you are making the notes. You have prepared the notes and now the chapter or subject is over. Now next step is you are going to practice MCQs. When you are practicing MCQs, what you have done before practice, आपने अपनी वर्कबुक या अपनी नोटबुक लिया जिसमें भी आपने लिखा था, नोट्स बनाए थे, उसको एक बार आप रीड कर रहे हो. दिस इज व्हाट वी कॉल पैसिव रिविजन, व्हिच इज somewhere not helping you in your making the revision more strong. So what is the alternative? The right now best strategy to revise the content in a more impactful way and more effective way is active revision recall. Yes, is active revision recall. अब ये जो active revision recall है, ये क्या होता है? Active revision recall is nothing but how well you are revising and how well you are understanding your concept. Active revision recall you can perform through practice also. आपको frequently asked जो topic होते हैं उसको रिवाइज, नोट्स को जाने की जरूरत नहीं है, बस फैक्चुअल डेटा को रट लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको रटना ही पड़ेगा, राइट। जैसे 30:2 है तो वो तो रटना है 30:2। अब प्रैक्टिस करके भी आप इसकी रिवीजन ही कर रहे हो ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक की, राइट। दूसरा मेथड क्या है एक्टिव रिवीजन का? आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक की सारा जो है वीडियो देख लिया, आपके पास आपके जो है वीडियो देखने के बाद व्हाट यू कैन डू, आप उन्हें स्टोरी फॉर्म में अपने जो है कलीग को, अपने सिबलिंग्स को या अपने रूममेट को वो सुनाओगे पूरा कंसेप्ट,
लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन द मॉर्निंग आई हैव वॉच अ वीडियो ऑन सीपीआर. सो सीपीआर में मैंने पूरा वीडियो देख लिया मैम का. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो नाउ आई हैव अ सिबलिंग जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैंने बस उसे थोड़े से पैसे दे दिए कि मेरे साथ बैठ के बिना परेशान करे वो जो भी मैं बोल रही हूँ वो बस आंख नाक बंद करके मुझे सुन ले, ना खुलियो, बस कान बंद करके सुनता जाए, राइट? So what I am doing here in this way, in this method, I am rephrasing whatever I have learned. मैंने वीडियो ऑन नहीं करी है, मैंने जो भी उस वीडियो से समझा था, whatever concept I have built while watching the video, now I am paraphrasing, right? तो जब हम खुद से बोल रहे हैं ना, दोबारा सेम रिपीट कर रहे हैं, माइंड क्या है उस चीज को बेटर वे में कैप्चर करेगा और बहुत ही लॉन्गर मेमोरी में रिटेन हो जाएगा. So that is in a form of storytelling. You are practicing the revision module, which is active revision recall, right? Third method क्या होता है, which is very very important. जो भी आपने पढ़ा है, especially the frequently asked topic, जो भी आपने frequently asked topic पढ़ा है, CPR पढ़ा है, उसके short notes बनाना अपनी लैंग्वेज में. आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो नाउ आई हैव अ नोटबुक जहां पे मैंने हेडिंग लिखा CPR. आफ्टर CPR नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन बुलेट पॉइंट whatever I understood while watching the video. That is your short note, or they are going to help. These all methods are going to help you a lot in the revision of content for a longer period of time, right? Instead of simply writing and simply reading from the book, no. Try yourself using this active recall revision process, revision strategy, जो आपको काफी help करने वाली है, and that is also going to improve your grand test score as well. Right? So practice and revision. Now let's talk about the source. हमें जो practice and revision करना है वो basically कहाँ से कर सकते हैं? For practice, let me tell you, because every time last 60 days the Nursing Next Live is going to come up with the धमाकेदार Super 50 test series, and this is one of the most trustable test series जहाँ पे majority strike rate और जो direct question आते हैं, so you can have this practice part. But this time अभी प्रैक्टिस में कुछ नया ट्विस्ट है, एंड द न्यू ट्विस्ट इज सुपर 50 रीडिफाइन होके उसका जो नया नाम आया है, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सुपर 50 टेस्ट सीरीज का जो न्यू वर्जन है वो है स्ट्राइक टेस्ट सीरीज, राइट? तो स्ट्राइक नॉट सेट सीरीज आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है एट द NNL एप्लीकेशन. आप वहां पे जाके उसे रिव्यू कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं. द स्ट्राइक टेस्ट सीरीज इज अ रीडिफाइंड वर्जन ऑफ सुपर 50. So it is a redefined version of Super 50 where you will be getting all high yielding topic tests in all patterns, right? Revision की अगर मैं बात करूँ, revision the best source that I can have that you can practice with is Fast Track 9.0. Yes, काफी बार मुझे बच्चों ने पूछा था मैम when NNL is going to start the Fast Track. So Fast Track is going to start with the Strike series और Fast Track 9.2 and Strike Test series पूरा एक कॉम्बिनेशन का पार्ट है जिसमें Master Stroke Volume 3 is going to help you a lot as a revision volume जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एंड पूरा का पूरा वन लाइनर है, ऑल द हाई रीडिंग टॉपिक ऑफ ऑल सब्जेक्ट. इसके साथ रिविजन के लिए यू कैन प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स जो मैंने बोले थे, ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक. बट इफ यू आर टेकिंग दिस फास्ट ट्रैक प्लान देन यू विल बी गेटिंग दिस स्टडी मटेरियल ऑफ Master Stroke Volume 3, so that is going to save a lot of your time, right? So practice में अगर मैं strike not set की बात करूँ, strike not set में आपको क्या मिलने वाला है? Subject wise test मिलने वाले हैं जिसमें all high yielding topic या फिर frequently asked topic cover होंगे. मिनी टेस्ट मिलेंगे जो कि important आपके images होते हैं, एक्सरे वाले, एरिथमिया वाले या फिर ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर जो होते हैं. आपको 5 IBQ मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज जिसमें इंपॉर्टेंटली जितने भी क्वेश्चन, जितने भी IBQ बार बार पूछे जाते हैं वो सारे कवर होंगे. यू विल बी गेटिंग 12 ग्रैंड टेस्ट, 6 प्रीलिम्स पैटर्न में एंड 6 मेंस पैटर्न में, एंड द स्टडी मटेरियल दैट यू विल बी गेटिंग इज वन लाइनर रिविजन नोटबुक विच इज वेरी गुड, मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3, राइट? सो दिस इज द एंटायर समरी ऑफ ऑल द टेस्ट जो आपको मिलने वाला है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई रियली लाइक अबाउट दिस स्ट्राइक नॉट सेट इज जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे वो एक ही नहीं मिलेगा. दैट मीन्स मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे. यू कैन सी इन नर्सिंग फाउंडेशन 8, इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 9 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है ताकि यू कैन इजिली अटेम्प्ट एंड यू कैन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन द वे भी आप, स्पेशली जो लोग वर्किंग है, अलॉन्ग विद योर कोई भी बुक जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो MCQ की. सो दिस इज योर एंटायर शेड्यूल ऑफ स्ट्राइक, नॉर्सेट
राइट. स्ट्राइक नॉर्सेट के साथ यू विल बी गेटिंग फास्ट ट्रैक 9.0, जिसमें ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग लाइव सेशन बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी जो कि 200 आवर का होगा. एंड मेंस के लिए यू विल बी गेटिंग क्लिनिकल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ मेंस सब्जेक्ट. देन आपको टेस्ट एंड डिस्कशन रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी 50 आवर्स की. एंड आपको रिविजन मिलेगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट का. एंड इसी का ही आपको टेस्ट भी मिलेगा टू प्रैक्टिस. राइट. You will be getting NORCET Summit also just 15 days before the examination, where our main focus is to give the chanting of all the one-liner, all the important topics. So आपको चलो मिलकर पढ़े मिलने वाला है chanting session. You will be getting IBQ session separately for NORCET 9.0, and you will be getting the recall session of NORCET examination. So this is all about in your last 60 days that how you can best utilize for your NORCET 9.0 preparation. Remember the two important module, practice revision. Practice करना है grand test, frequently asked test, your previous year question. Revision की strategy को change करना है. From passive, now we have to switch on the active revision recall strategy. You have to try to make your notes, but if you'll go with this plan, you'll be getting Master Stroke Volume 3, so that you can you can save your time, क्योंकि उसी में ही सारे आपके one liner present है. Now this is a very beautiful image. Those who have started their preparation a way long back, and now somewhere, क्योंकि journey लंबी है, keep going. You are giving your best. Don't stop. Don't give up. This is your time. You are going to make it last 60 days. Nobody is going to remember how hard you have worked. Nobody is going to talk about कि कितना struggle आपने किया है. Once you'll achieve the success, only you know कि उसकी background story क्या है. Right? I'm really wishing you all the best for your NORCET examination, and I'm waiting for all of you to come and give the interview after your NORCET 9.0 once you'll secure your rank, and it is possible to secure All India Rank 1. All you have to do is maintain the consistency, keep yourself motivated, self-belief that you are going to clear with a very good score and very good rank. So that's all from my side. See you all with another important session. Till then, stay happy.